हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी प्रेप पे। आज यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना डिस्कशन बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 17 विच इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। ओके, in our previous session where we already covered few aspect of this particular unit. Okay, if you see the course content, so liquidity risk management introduction, potential liquidity risk drivers already done, liquidity risk types, principle for sound liquidity risk management, governance of liquidity risk management. Okay, these subtopics we already covered in our previous session. आज हम लोग आपका यहाँ से आगे की जर्नी को स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर लें और अपने जो साथी बैंकर्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस, ठीक है, तो जिससे वो लोग भी हमें आपका ज्वाइन कर सके, ठीक है। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक आपका डिस्कस किया था। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट है, यू कैन मेंशन योर क्वेरीज इनटू द कमेंट सेक्शन। सो आई विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज आल्सो, राइट। तो गाइज, अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नेंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, दैट मींस इट इज ऑल अबाउट द liquidity risk management framework. So whenever we talk about risk management framework, so it include um, your basically the organizational structure that again belongs to board of directors, elco. Then we have a risk management committee, liquidity risk management committee, and department and subgroups, right? And uh, ALM is the major role. The ELCO committee is the most important in this particular case also. Okay. So Reserve Bank of India's had issued guidelines on asset liability management system covering inter alia liquidity risk management system in February 1999 and 2007. Successful implementation of any risk management process to emanate from the top management in the bank with the demonstration of its strong commitment to integrate basic operations and strategic decision making with risk management as well. Okay? So which include these particular ones. So whenever we talk about the governance, so वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो लाइक जो भी हम लोग जितने टाइप ऑफ रिस्क हमने पढ़े हैं सब में आपका सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, बट वी हैव सम डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज। जैसे इसमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन वी हैव these two are common in all type of the committees. Then we have ALCO, Asset Liability Management Committee, and Asset Liability Management Support Groups. ठीक है, so board of directors, every policy procedure it should be part of board approval policy. जैसे हमने कल आपका प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था कि जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, फ्रेमवर्क्स या जो भी मॉडल्स हमने अडॉप्ट किए हैं, इट शुड बी रिव्यूड बाय बोर्ड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, राइट। तो उनके द्वारा इनके ऊपर चेक होना चाहिए। देन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो वेटिफाई करेगा, आपका वेटेज देगा आपका कितना है और उसके संबंध में चीजें, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी इक्वल टू योर एल्को, इक्वल टू योर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी and some support groups also, right? So a board of directors should have the overall responsibility for management of liquidity risk. The board of directors should decide the strategy, policies, and procedures of the bank to manage liquidity risk in accordance with the liquidity risk tolerance or limit, ठीक है। तो जो बैंक का रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से ये पॉलिसीज होनी चाहिए, एंड there should be a periodical review on those particular policies, procedures by the board. So at least in a year, once in a year, and to check the efficacy and efficiency of the adopted models or procedures as well, right? So first aapka, then we have risk management committee. So the risk management committee, which represent a board consisting CRO, chief risk officer, chairman and managing director, and head of credit, marketing, and operational risk management committees, should be responsible for evaluating the overall risk faced by the bank, इंक्लूडिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो जैसे इसका रोल हर उसमें होता है, ठीक है, और यही चीजों को एक्चुअल में आपका डिसाइड कर रहा होता है। अगेन इट्स अ बोर्ड लेवल कमेटी। एल्को का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ये So asset liability management committee
consisting of bank top management should be responsible for ensuring adherence to the risk tolerance limit set by board, as well as implementing liquidity risk management strategy of the bank in line with the bank decided risk management objectives and risk tolerance of that particular bank as well. ठीक है, तो जैसे एक्चुअल में जो आपका लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं उनका इनिशिएशन आपका यहाँ से होता है. ठीक है, जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं दे जनरली प्रोवाइड द फीडबैक्स about the day-to-day operations and others. So they'll design these particular things, they'll pass on to risk management committee, and risk management committee after the evaluation they'll provide to pass on to a board of directors for the approvals, right? तो इस तरीके से आपका जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगा. सपोर्ट ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, so ALM support group consisting operating staff should be responsible for analyzing, monitoring and reporting the liquidity risk profile to the ELCO. The group should also prepare forecast simulations showing the effective of various possible changes in market conditions on the bank liquidity position and recommend action needed to be taken to maintain the liquidity position either to bank internal limits also, right? So this is something कि आपका जो existing policies procedures हैं उनका implementations and proper implementations, and if they have some feedbacks because they are working on branch level या ground level. ठीक है, उनको पता है actual में जो policy procedure है how effective it is. ठीक है, अगर कुछ उसमें changes के requirement है so they'll send those particular feedbacks to ELCO आपका. ठीक है, then ELCO will consider those areas, they'll study those areas, and अगर कोई भी suitable change का requirement होगा so they'll definitely do that. ठीक है, so liquidity risk management policy. So we have first one is risk tolerance. Another one is strategy for managing liquidity risk. So first we have to decide our risk tolerance level. Okay, that is also known as risk appetite, right? कितना आपका हो सकता है हर एक चीज में आपका downsides आपका हमें set करने होते हैं, and it should be clearly articulated to all the stakeholders of that particular organizations, and it should be part of board approval policy as well, right? दूसरा आपका अगर जैसे कोई भी इवेंट्स आपका या जो एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या स्ट्रेसफुल सिचुएशन कोई भी है, ठीक है, सो हाउ विल डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, सो विल बी रिक्वायरिंग प्रॉपर स्ट्रेटजीज इन अदर्स. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिस्क टॉलरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, बैंक शुड हैव एन एक्सप्लिसिट लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस सेट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. The risk tolerance should define the level of liquidity risk that bank is willing to assume and should reflect the bank financial condition and funding capacity as well. ठीक है, तो risk tolerance को आपका define करना, decide करना as per the existing source of funding, or even like we can say जो भी वेरिएबल्स आपके हैं बैंक के एग्जिस्टिंग कंडीशंस के ऊपर उनको ध्यान में रखते हुए इसको आपका डिसाइड करना. ठीक है, सेकंड वन आपका मैनेजिंग स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क. So the strategy for managing liquidity risk should be appropriate for the nature, scale and complexity of the bank activities. In formulating the strategy, bank or banking group should take into consideration its legal structure, key business line, the breadth and diversity of market, product, jurisdiction in which they operate, and home and host country regulators, regulatory requirements, etc. Okay? So whenever we are planning our risk management strategy, so these are some key variables which we have to consider. जिन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड का, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ. ऑलराइट, चलो, तो दीज आर द की वेरिएबल्स. आपका ये कुछ आपके वेरिएबल्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू डिजाइन आर स्ट्रेटेजी कि हम आपका जो हमारा रिस्क मिटिगेशन प्लान या जो पॉलिसी प्रोसीजर्स हम लोग बनाएंगे वो कहीं ना कहीं इनके अराउंड आपके होंगे. ठीक है, जिसमें एग्जिस्टिंग बैंक कंडीशंस या जो हमारे बिजनेस लाइन है उनके हिसाब से, या आपका जो होम रेगुलेटर्स की गाइडलाइंस हैं, या किसी दूसरी कंट्री में अगर हम हैं
तो वहां पे हम उनकी जो गाइडलाइंस है उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सो पहला आपका, अगर मैनेजमेंट में जाते हैं तो फर्स्ट वन इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन, अनदर वन इज मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। सो आइडेंटिफिकेशन विच नो, ठीक है। तो लिक्विडिटी रिस्क आपका, सो आपके अलग अलग बिजनेस लाइन में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जहां पे हम लोग लिक्विडिटी रिस्क फेस कर सकते हैं। एंड मेजरमेंट इज बेसिकली क्वांटिफाइंग दोज एक्सपेक्टेड लॉसेस, ठीक है। तो अगर वो चीजें होती हैं तो उनसे हमारा कितना नुकसान आपका हो सकता है, ठीक है। So a bank should define and identify the liquidity risk to which it is exposed for each major on and off balance sheet positions, including the effective of embedded options and other contingent exposures that may affect the bank's sources and used to fund and for all currencies in which bank is active, ठीक है। तो अगर हम लोग आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आपका ओवरऑल बैंक लेवल पे, बिजनेस लाइंस लेवल पे, इसके अलावा आपका एम्बेडेड ऑप्शंस को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर हमने किसी कस्टमर को लोन दे रखा है या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं तो उनके पास कई बार हम लोग रीपेमेंट या प्रीमेच्योर का ऑप्शन देते हैं। इफ दैट सिचुएशन अकर कि अगर इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज आता है तो हाउ दे विल बिहेव, तो उसके हिसाब से आपका क्या होगा। या फॉर एनी लाइक जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के अंदर हमारे जो पोजीशंस हैं उनके हिसाब से आपका क्या वहां पे रिस्क है। अदर्स ईच एंड एवरीथिंग शुड बी आइडेंटिफाइड बाय दी आपका जो भी एल्को कमेटी है या जो इसको आपका मैनेज करे, ठीक है। Measurement is there are two simple way of measuring liquidity. One is stock approach, another one is flow approach, ठीक है। तो आपका liquidity risk को measure करने के लिए we have two approaches. One is stock, another one is आपका flow approach. So sir, आपका stock approach is generally based on kind of past data और आपका like it is something related to ratios and others, ठीक है। और flow approach में भी आपका जो मूविंग एवरेज आपका उसके हिसाब से, ठीक है। सो स्टॉक अप्रोच सर्टेन रेशियोज लाइक लिक्विड एसेट टू शॉर्ट टर्म टोटल लाइबिलिटीज, परचेज फंड टू टोटल एसेट्स, कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट, लोन टू डिपॉजिट रेशियोज आर कैलकुलेटेड एंड कंपेयर टू द बेंचमार्क दैट अ बैंक हैज सेट फॉर इटसेल्फ, ठीक है। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री एवरेज है उनके लिए वो भी, आई विल शो यू द कंप्लीट चार्ट आल्सो, ठीक है। ये सारे रेशियोज, उन रेशियोज का आरबीआई के द्वारा इंडस्ट्री एवरेज और बैंक के द्वारा अपने लिए खुद के जो पैरामीटर सेट किए गए हैं तो उनके हिसाब से वो आपका बिहेव करना चाहिए। while the stock approach help the looking at liquidity from one angle, it does not reveal the intrinsic liquidity profile of the bank. Intrinsic risk क्या पढ़ रहा था आपको, ठीक है, कि like after diversification there is a probability of loss, so that is kind of जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क आपके हैं, ठीक है। सो दैट यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बाय यूजिंग स्टॉक अप्रोच, राइट। तो दीज आर द रेशियोज, ये सारे रेशियोज आपके हैं, 7 रेशियोज आर देयर, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी इंडस्ट्री एवरेज आल्सो, ठीक है। तो ये रेशियोज आपका जैसे वॉलेटाइल एसेट्स, सॉरी वॉलेटाइल लायबिलिटीज माइनस टेम्परेरी एसेट डिवाइड बाय अर्निंग एसेट डिवाइड आपका टोटल एसेट, ठीक है। सो मेजर द एक्सटेंट टू विच volatile money support bank basic earning assets. Since the numerator represent the short-term interest-sensitive funds, a high and positive numbers implies some risk of the liquidity. That means if it is industry average is 40, so you should keep below 40 आपका जो आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका कोर डिपॉजिट डिवाइड बाय टोटल एसेट, measure the extent to which assets are funded through a stable deposit base. Industry average is 50. Loan plus mandatory CRR plus mandatory SLR plus fixed asset divide by total asset, ठीक है। So loan including mandatory cash reserve and statutory reserve investment are least liquid and hence high ratio signify the degree of liquidity embedded in the bank balance sheet, or this is the average, ठीक है। लोन प्लस मैंडेटरी सीआरआर मैंडेटरी एसएलआर प्लस फिक्स डिपॉजिट डिवाइड बाय कोर डिपॉजिट, ठीक है। यहां पे आपका था टोटल एसेट, यहां पे कोर डिपॉजिट। सो मेजर द एक्सटेंट टू विच लिक्विडिटी एसेट्स आर मेजर सॉरी फ्री फाइनेंस आउट ऑफ द कोर डिपॉजिट, सो 150%. Temporary asset divided by total asset, measure the extent of available liquidity asset. A higher ratio could imping on the asset utilization of banking system
in term of opportunity cost of holding liquidity. Average is 40. Temporary asset divided by volatile liabilities measured to cover the liquid investments relative to volatile liabilities. A ratio of less than 1 indicate the possibility of liquidity problems. ठीक है, एवरेज इज 60. आपका volatile liabilities plus divide by total asset measure the extent to which volatile liabilities fund the balance sheet. So again industry average is 60. So while we will practice the case studies, you can expect one case study based on this one or numericals based on this. So we will apply these particular area. But खाली केस स्टडी का इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, कई बार वो आपको आपका स्पेसिफिक पॉइंट्स से रिलेटेड भी एरियाज आपका जैसे आपका वॉलेटिलिटी इन एम्बेडेड ऑप्शंस कैसे कैलकुलेट होता है अदर्स, वो भी आपको एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किए जा सकते हैं. तो मैंने उन सभी रेशियोज को कुछ जो इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे गए, जैसे वॉलेटाइल रेशियो आप कह रहे हैं, दिस इज सिमिलर टू दिस. ठीक है, यहीं से आपका ये है, कुछ अलग नहीं है इसमें. ठीक है, दूसरा आपका टेम्परेरी एसेट्स आपका. ठीक है, सो टेम्परेरी एसेट एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अर्निंग एसेट्स आपका. ठीक है, इसके अलावा कोर डिपॉजिट्स आपका. ठीक है, सो दीज आर सम एरियाज जो काफी बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज अबाउट द लिक्विडिटी रिपोर्टिंग. ठीक है, सो रिपोर्टिंग टू आरबीआई अबाउट योर लिक्विडिटी पोजीशन. ठीक है, तो अपनी जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसके बारे में आरबीआई को रिपोर्ट करना, तो उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग है और प्रॉपर टाइप ऑफ रिपोर्ट. देयर आर 5 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स व्हिच बैंक नीड टू रिपोर्ट टू आरबीआई. ठीक है, जैसे दिस इज द लिस्ट आपका. ठीक है, तो इस पे आएंगे. बैंक आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द लिक्विडिटी रिटर्न एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट to the Chief General Manager in charge, Department of Banking Supervision, RBI, Central Office, Trade Center Mumbai. आपका कौन कौन सा? Statement of Structural Liquidity. ठीक है, तो जिसमें the existing liquidity reporting requirement have been reviewed by RBI. Under the revised requirements, the time bucket are to be aligned as with effective from 1st February 2016 as per the टेबल. जैसे आपका नेक्स्ट डे, इसके अलावा 2 to 7 डेज आपका, इसके अलावा 8 to 14 डेज, इस तरीके से अलग अलग उसमें आपका दे हैव टू रिपोर्ट. और बैंक दे हैव टू रिपोर्ट देयर स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटस टू द आरबीआई. जिसमें आपका स्टेटमेंट्स कैसे होंगे, तो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्टेड इन 5 पार्ट्स. ये जो सारे रिपोर्टिंग्स होंगे उसका कैसे, पहला फॉर डोमेस्टिक करेंसी इंडियन ऑपरेशन फोर्टनाइट बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने. नहीं, for foreign currency international operation again fortnight. ठीक है, for combined Indian operation again fortnight. ठीक है, for overseas operation it is monthly basis, consolidated bank operation quarterly basis. ठीक है, अब ये कैसे आपको याद रहेंगे, यहाँ पे लिखा भी है जैसे while the statement 1 to 3 are required to be submitted on fortnight basis, statement 4 and 5 are required to be submitted at monthly and क्वार्टरली इंटरवल रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो पीरियोडिसिटी अगर हम लोग बात करें उसके ऊपर हम लोग आएंगे, उससे पहले प्लीज डू रिमेंबर दीज 5. ठीक है, तो पहले 3 आपका क्या है, फोर्टनाइट बेसिस. ठीक है, एंड दिस इज मंथली एंड दिस इज क्वार्टरली. ठीक है, कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर. ठीक है, दे विल गिव यू द सीक्वेंस, कौन सा आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के संबंध में सही है या गलत है. सो दैट इज, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में इसको रखना है. ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये हमारे पास है. ठीक है, सेम चीज मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा. ठीक है, सो पहले 3 आपका फोर्टनाइट बेसिस पे, एंड दिस इज ऑन मंथली बेसिस एंड दिस इज ऑन क्वार्टरली बेसिस. ठीक है, तो मैं एक्चुअली हमेशा कंटेंट को अलाइन रखता हूँ आपका मैकमिलन के साथ, तो इस तरीके से ये दिस इज एग्जैक्ट आपका कंटेंट जो आप वहां पे देखेंगे, बिकॉज यही चीजें उसने आपको एग्जामिनेशन में पूछनी है. ठीक है, सो प्लीज डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड दिस वन. ठीक है, इसमें आपका अगर हम लोग बात करें जैसे लिक्विडिटी रिटर्न्स का, सो स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रिटर्न्स आपका नेम ऑफ द लिक्विडिटी रिटर्न, पीरियोडिसिटी एंड आपका इसके अलावा टाइम पीरियड बाय विच रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड. अब यहाँ पे जैसे पहला पार्ट 1 जो है स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी डोमेस्टिक करेंसी इंडियन ऑपरेशन फोर्टनाइट बेसिस. ठीक है, तो फोर्टनाइट बेसिस आपका जैसे, अब फोर्टनाइट में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मतलब फोर्टनाइट का मतलब है 15th एंड 30th को, अगर 15th को हॉलीडे लाइक 15 अगस्त,
तो 14th विल बी योर रिपोर्टिंग, ठीक है। अगर 30th को छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले प्रीसीडिंग आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग डेट विल बी 15th एंड लास्ट ऑफ द मंथ, 15th एंड लास्ट ऑफ द मंथ। इन केस दीज डेट आर हॉलीडेज, द रिपोर्टिंग डेट्स विल बी प्रीवियस वर्किंग डे, ठीक है, नॉट नेक्स्ट, प्रीवियस वर्किंग डे। ये सबके दिमाग में आपका रहना चाहिए। दूसरा तो फोर्टनाइट हमने समझा था। दूसरा फॉरेन करेंसी इंडियन ऑपरेशन आपका फोर्टनाइट बेसिस, ठीक है। और ये आपका कंबाइंड ऑपरेशन फोर्टनाइट बेसिस, ये तीन आपका, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड बाय विच रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड विद इन अ वीक फ्रॉम दी रिपोर्टिंग डेट आपका, ठीक है। तो जैसे आपका जैसे सपोज दैट अक्टूबर मंथ्स या नवंबर मंथ्स, ठीक है, नवंबर मंथ्स का आपका फोर्टनाइट, ठीक है, 15 तारीख। अब वो 15 तारीख के विद इन हाउ मेनी डेज, ये आपका दीज आर द डे, विद इन अ वीक यू हैव टू रिपोर्ट टू दी आरबीआई। जैसे आपका अब अगला वाला क्वार्टर खत्म हुआ, सॉरी नेक्स्ट 15 डेज खत्म हुए, ठीक है, सपोज दैट 30th नवंबर खत्म हुआ या लास्ट ऑफ द मंथ खत्म हुआ, तो विद इन अ वीक, तो दिस इज द वीक आपका, कि एक हफ्ते का भीतर आपको रिपोर्ट करना होगा आरबीआई को, ठीक है। और रिपोर्ट जो होगी दैट दैट विल मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इट इज योर रिपोर्ट विल कवर fortnight position of your liquidity structure about the domestic currency, right? domestic currency में आपकी क्या पोजीशन रही है, वो फोर्टनाइट का डेटा 1 से लेके 15 तारीख का, और वो रिपोर्ट होगा यहाँ पे आपका विद इन अ वीक, ठीक है। इस तरीके से जो आपके रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ओवरसीज ऑपरेशन, ठीक है, आपका मंथली बेसिस, एंड आपका कंसोलिडेटेड आपका जो फिफ्थ वन था वो क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। सो विद इन 15 फ्रॉम दी रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। सो ये आपका, ठीक है, टाइम पीरियड बाय विच रिक्वायरमेंट टू बी रिपोर्टेड, ठीक है, और ये आपका क्वार्टरली विद इन अ मंथ। तो प्लीज 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 डू रिमेंबर दिस, रिपोर्टिंग डेट विल बी द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ और क्वार्टर, ठीक है, इन दोनों के केस में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप सभी को इसको ध्यान रखना है। चलो अब हम आते हैं अपने की पॉइंटर्स के ऊपर। सीएफपी की हमने बात करी, ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 11 विच इज ऑल अबाउट द सीएफपी, ठीक है, आपका कंटिंजेंसी फंडिंग प्लान, ठीक है। सो अ बैंक शुड हैव अ कंटिंजेंसी फंडिंग प्लान टू एड्रेस लिक्विडिटी शॉर्टफॉल इन इमरजेंसीज। A thorough evaluation of bank liquidity risk could not be achieved by the conducting stress test only for the institution specific scenario. Market wide scenario are also important because they assess how a bank would behave in the event of significant disruption to the financial and economic market, such as financial crisis or serve market downtrend, ठीक है। तो पहली चीज आपका सीएफपी होना जरूरी है। सीएफपी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं हम लोग, फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एंड दिस जो आपका सीएफपी मॉडल यू आर डेवलपिंग, इट शुड बी इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक एज वेल एज मार्केट स्पेसिफिक, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही है, आपको जो आपके स्ट्रेसफुल सिनेरियोस हैं उनको भी ध्यान रखना है, लाइक सिचुएशन लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर ऐसा कुछ होता है तो हाउ योर बैंक विल बिहेव, हाउ योर बैंक विल मीट विद द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, so that should be part of your CFP and it should be tested on regular basis। जो स्ट्रेस टेस्ट है वो आपका रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए टू चेक द एफिकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ योर CFP, राइट। तो दैट इज द वन, पहला पॉइंट। दूसरा अनइनकम्बर्ड एसेट्स आपका, ठीक है, इनकम्बर्ड एंड अनइनकम्बर्ड एसेट, ठीक है। तो अनइनकम्बर्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स अगेंस्ट विच बैंक हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ लोन इन अदर्स, ठीक है, तो वो कहीं पे प्लेस नहीं किए गए, ठीक है, सिंपल सा आपका, दे आर हाईली लिक्विड, आपका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट वी कैन से, वी बैंक यूज दिस पर्टिकुलर एसेट एज एन इंश्योरेंस फॉर दी एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो जहां पे अगर प्रॉब्लम होगी तो उनको लिक्विडेट करके हम लोग आपका रिकवर करेंगे, ठीक है। सो अनइनकम्बर्ड एसेट रेफर टू दैट अनइनकम्बर्ड बाय sorry that are unencumbered by any financial or legal demands, which means they are not placed as collateral or constrained in any way. Asset that may be swiftly and readily converted into cash without suffering a major loss in value are referred to as high quality liquid asset. These assets frequently consist of cash, government securities and other financial sound but easily
tradable instruments. A bank ability to withstand future liquidity stress situation is protected by the maintenance of such cuisine of unencumbered high quality liquid asset. Various factors such as unplanned occurrence, market disruptions, or rapid lack of faith in the bank financial stability can lead liquidity stress scenario. तो वहां पे आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हर सेशन के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइट करके बता देता हूँ. सो दिस इज द वन. सेकंड थिंग, थर्ड वन आपका, a bank should have a trustworthy MIS. ठीक है, रोल ऑफ MIS बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि ये जनरली आपका ऑटोमेशन पे चलता है. एंड इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, दे इट शुड बेसिकली जनरेट दी अलर्ट्स. ठीक है, अगर कुछ भी आपका जो गाइडलाइंस उनके अकॉर्डिंग्स नहीं हो रहा है तो MIS को आपका अलर्ट जारी करना चाहिए. एंड जितने जल्दी MIS अलर्ट भेजेगा उतने जल्दी हम उनके ऊपर रेमेडियल एक्शन आपका ले सकते हैं. तो जो लॉसेस की प्रोबेबिलिटी है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है. ठीक है, तो MIS बहुत होना स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. ठीक है, that offer up-to-date information on liquidity level. The MIS should include information on the bank liquidity holding in every currency it deal in, both at level of each country subsidiary branch as well as a whole. It must include all potential sources of liquidity risk, such as unforeseen risk and those brought up by novel activity. During stressful situation, MIS should also be able to provide more specific and urgent information. The MIS play a significant part in the management of liquidity risk by providing the ELCO board and ELCO with the with thorough information. ठीक है, तो अगर इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, आपको टाइमली बेसिस पे पता चलेगा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है या ये गड़बड़ हो रहा है, तो हम उसको जल्दी से सुधार सकते हैं और जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको आने से रोक सकते हैं. ठीक है, अगला हमारे पास the internal factor in bank that may potentially lead to liquidity risk problems in bank. तो ये हमने समझे थे, आई होप सबको याद होगा. पहले उसमें मैंने आपको एक चार्ट कराया था, इंटरनल फैक्टर एंड आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर्स में ये सब आपका, तो आपका दीज आर द ड्राइवर्स टुवर्ड द लिक्विडिटी रिस्क. ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन जो बैंक के एक्शन की वजह से, दीज आर द एक्शन टेकन बाय बैंक, जिसकी वजह से बैंक को क्या हो रहा है, आपका लिक्विडिटी ट्रैप में वो फंस सकता है. ठीक है, सो दैट्स हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, नेगेटिव गैप इन द मेजॉरिटी ऑफ एसेट इन दिस ALM का गैप, concentration on deposit. Bank rely heavily on short-term corporate deposits. That means there is no proper diversification and it can face a funding risk. Bank rapid expansion exceed the available fund on the liability side. Liability आ रही है और long term asset create करते जा रहे हैं. ठीक है, that problem. Less allocation in liquid government instrument. Fewer प्लेसमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट. ठीक है, तो ये हमने कल भी पढ़े थे, आई होप सबको याद होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स की वहीं अगर हम लोग बात करें, सो हियर वी हैव अ लिस्ट. वेरी सेंसिटिव फाइनेंशियल मार्केट, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, लो एंड स्लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक शॉक, decreasing depositors trust in banking, sudden and massive liquidity withdrawals from deposit, unplanned termination of government deposits, right? So these are some major external factors or external key drivers which may lead to the your liquidity risk. Okay, so this is it. तो ये आपका so this is it. ठीक है, तो ये आपका खत्म होता है हमारा liquidity risk management. ठीक है, now the final unit from this particular module is Basel III guidelines on liquidity standards, which I'm going to take live at 9 PM. ठीक है, तो आज मैं आपको लाइव मिलूंगा और उसमें हम उन एरियाज को आपका डिस्कस करेंगे. ठीक है दोस्तों, तो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. ठीक है, और आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है. तो अगर कोई कंफ्यूजन है अबाउट इलेक्टिव सब्जेक्ट, अबाउट द ओवरऑल एग्जामिनेशंस या अदर्स पास क्राइटेरिया, एनीथिंग, आपको कोई भी ऐसा डाउट है, जनरली यूजुअली होता नहीं है CIB में आने में, क्योंकि ये सारे डाउट आपके GIB में क्लियर हो जाते हैं, बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी इशू, एनी चैलेंज, आपको DVF से आपका, अगर किसी ने DVF की तरह दिया था, DVF से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आपका आपके GIB में कन्वर्ट करने की, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है,
सो मैंने आज मॉर्निंग में मेरे कुछ लोगों से बात भी हुआ था, तो नाउ इट इज ओपन, सो यू कैन, मैंने एक वीडियो भी उसके ऊपर किया है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डीवीएफ टू जीआईबी, आप वो भी देख सकते हैं। अगर नहीं फिर भी प्रॉब्लम आता है, आप टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट करो, आई शेयर माई नंबर, तो वहाँ पे हम लोग आपका बात भी करेंगे। बट काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है सीआईबी नवंबर दिसंबर का, बहुत कम दिन बचे हैं, तो बढ़िया से अगर अभी से रेगुलर स्ट्रक्चर बेस पे स्टडी करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे स्ट्रक्चर का फायदा होता है, हमने एक महीने पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, और आज हमने मॉड्यूल बी खत्म कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट ओनली वन सेशन इज रिमेनिंग, दैट आई विल कवर इन द लाइव। अब ये देखो क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 18 यूनिट्स हमने कवर कर लिया, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी आपका खत्म हुआ, दैट मीन्स 60% प्रिपरेशन इज डन, ठीक है, क्योंकि सी और डी में ये चीजें आपका रिपीट होंगे, वहां पे ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा ये बनता है। आई होप सबने सारी चीजें देखी होंगी, ठीक है। तो अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, जो चाहिए वो करो, आप कनेक्ट कीजिए हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, उधर दिशा मैम ने अपना पूरा बीआरबीएल का सेशन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी मैम एक्चुअली 3-4 सेशन नहीं कर पाएंगे, बट जस्ट आफ्टर, मैम अभी थोड़ा हॉलीडे पे हैं, तो जैसे वो निकल दिए तो उसके बाद आपका रेगुलर सेशन आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एंड आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज मैंने प्लान किया है, एबीएम की जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक हमारे मित्र हैं, तो उनसे आपका बात की है, तो वो भी आपको एबीएम का जो स्टैटिस्टिक वाला पोर्शन है उसमें बहुत हेल्प करने वाली है। वो पीएचडी हैं उस सब्जेक्ट में, तो उससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे उनको भी इन सेशन का फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही कहते हैं, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।